Hi everyone, I welcome you all to my YouTube channel guys. My name is Abhishek and once again I am in front of you with yet another interesting video of revision class 12 physics. In the first four videos we had completed the chapter number 1, that is electric charge and electric field. I hope things will get clear, even more clear to you since it's an revision video. So we will not get into the depth of the derivations or the concept. The main thing is to go through each and every concept so that you could refurnish your knowledge before the board exams 2024. So in this video, I'm going to start the chapter number 2, that is electric potential and capacitance. So let's start. And the first topic is electric potential electric potential energy. The very first topic is electric potential energy. सबसे पहला टॉपिक है electric potential energy. And see, energy means amount of work done, that is how much work needs to be done in order to displace a system of charge. For potential energy we have to consider the system of charge. एक system of charge के लिए let's say this is charge plus q and it is placed at point A and this is point B, and I am actually displacing a charge from C to this such that distance between A and B is R. Now how much work is done in order to displace it a distance dx? So potential energy UB minus UA is equals to work done W external from A to B. That is the potential energy. Some assumptions you need to know: that we are moving the charge very slowly so that velocity of the charge is approximately zero and there will be no I should say indulgence of kinetic energy in this concept, ताकि work done जो है from work energy theorem, work done is eventually kinetic plus potential, but here we are moving the charge very slowly so that the velocity of the charge is approximately zero and this potential energy is directly equals to the amount of work done. Next thing is, now what is work done? Work done is force into displacement. Now force, see, this is positive charge and test charge is also positive, so there will be a force of repulsion. So we have to do work done against electrostatic force, and that is F dx cos, external force is also acting in that direction, cos 0. So this is F dx, this is dw, small amount of work done, dw. Now this w will be integration, force is q naught 4 pi epsilon naught x square dx, and that too is minus q naught, limit I'll take infinity to r, 4 pi epsilon naught r. This is work done by external agent, but potential energy can also be calculated in terms of work done by the electric force. Electric force is actually repelling, so work done by electric, just try to understand it carefully. Work done by electric is equals to work done by external. Work done by electric is equals to work done by external. So this is U of B minus U of A is 1 upon 4 pi epsilon naught q naught upon r. This is the potential energy. If I am taking one point at infinity, so U of B, let's say A is at infinity, this could be written as 1 upon 4 pi epsilon naught q naught 1 upon r minus 1 upon infinity. So this is delta U is q naught 4 pi epsilon naught r. This is the potential energy. ये potential energy है, the basic I should say that the basic formulation of potential energy.
यहां पर आपने एक बात ध्यान रखनी है कि आर की सिंगल पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं इस क्यू नॉट को इधर लेकर के जाता हूं डेल्टा यू अपॉन क्यू नॉट, सो मुझे मिलेगा डेल्टा वी, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। अमाउंट ऑफ वर्क डन, amount of work done in order to displace, amount of work done in order to displace a system of charge, from infinity to, a system of charge from infinity to a point is potential energy। कितना वर्क डन करना पड़ रहा है एक चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लेकर के आने में, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। सिस्टम ऑफ चार्ज, अगर एक टेस्ट चार्ज को सिर्फ एक सिंगल यूनिट चार्ज के बारे में बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V of B minus V of A is equals to U of B minus U of A upon Q naught. This is how we will try to explain the electric potential. Now if you go for the unit of potential energy is of course joule and dimension ml2t minus 2. Similarly for potential unit is volt, dimension is ml2a minus 1 t minus 3. So that is potential, that is the dimension and unit of both potential energy and potential. Let's try to understand it more with the help of an example. This is a configuration Q, Q and Q. Now all the three charges are placed at the three vertices of an equilateral triangle. Amount of work done in order to displace them to a distance of A and A and A। हमें वर्क डन निकालना है, यानी कि हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले नेट पोटेंशियल इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। आपने यू फाइनल में से यू इनिशियल को सबट्रैक्ट करना है। सबसे पहले यू फाइनल अगर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, इस चार्ज का नाम मैंने 1 दे दिया, इसको मैंने 2 दे दिया, इसको मैंने 3 दे दिया, तो यह आ जाएगा U12 U13 U23। कितना आ जाएगा, दिस विल बी 3q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, दिस इज। एंड व्हाट अबाउट U इनिशियल, U इनिशियल की अगर बात करेंगे तो U इनिशियल आपके पास आ जाएगा कितना, 3q स्क्वायर 4 pi epsilon naught 2a। So when I want to calculate delta U, आप कॉमन चीज बाहर रख लीजिए, 3q square 4 pi epsilon naught a and this is 1 minus 1 upon 2। तो डेल्टा U आपके पास आ जाएगा 3q square 4 pi epsilon naught 2a। That is the answer। ये हमारे पास आंसर है इस I should say that is क्वेश्चन का। सो दिस इज हाउ यू गाइस कैन कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी। इस तरीके से आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज द रिलेशन। अब मैं बात करूंगा रिलेशन की, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में, उससे पहले एक बार फिर से समझ लीजिए, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक आई शुड से दैट, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और पोटेंशियल एनर्जी है, क्या सिमिलैरिटी है, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के अंदर क्या सिमिलैरिटी है, वो आप लोगों को एक बार फिर से समझना चाहिए। कुछ नहीं करना है, अगर आप पोटेंशियल एनर्जी को चार्ज से डिवाइड करते हो तो आपको पोटेंशियल मिल जाता है। इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये आपके पास है। नेक्स्ट थिंग, अब यहां से अगर मैं बात करता हूं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वंस अगेन इट्स अ रिवीजन सीरीज, तो मैं डेरिवेशन नहीं कराऊंगा। अगर आपने डेरिवेशन देखना है तो चैनल पर जाकर के इलेक्ट्रोस्टैट की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, आई हैव अपलोडेड इट देयर। अब यहां पर रिलेशन क्या है, E इज माइनस dV अपॉन dr, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। E इज इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dr, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब यहां पर मैं V को ऐसे भी लिख सकता हूं, E डॉट dr यहां से। तो सबसे पहली बात, V एक स्केलर है, E एक वेक्टर है, इसकी मैं बात करूं तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, E एक वेक्टर है, V एक स्केलर है। E को आप कैसे लिखोगे, Ex I कैप प्लस EY J कैप प्लस EZ K कैप, और इसको और सिंप्लीफाई करके माइनस डेल V बाय डेल एक्स I कैप डेल V बाय डेल Y J कैप डेल V बाय डेल Z K कैप, ऐसे आप लिख सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, लेट्स से आई हैव V इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स, फाइंड E at 1,1,1। आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ E at 1,1,1। तो चलिए जी, सबसे पहले E इज सिंपली माइनस डेल V बाय डेल एक्स आई कैप डेल V बाय डेल Y J कैप डेल V बाय डेल Z K कैप। सबसे पहले डेल V बाय डेल X कितना आ जाएगा, 2x प्लस जेड स्क्वायर, ये जीरो ये। उसके बाद डेल V बाय डेल Y कितना आ जाएगा आपके पास, 2y प्लस एक्स स्क्वायर, और डेल V बाय डेल Z कितना आ जाएगा आपके पास, 2z प्लस वाई स्क्वायर। तो अब E की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, माइनस 2x प्लस जेड स्क्वायर आई कैप माइनस 2y प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप माइनस 2z प्लस वाई स्क्वायर के कैप। The good point is we have to find out at 1,1,1. So what you have to do, just utilize these three value at the place of x, y and z, and what do you will get, 2 into 1 2 plus 1 3 minus 3 I cap minus 3 j cap minus 3 k cap, and if I want to calculate the modulus it will be 3 root 3. So this is how, if you have the adequate knowledge of the either potential or I should say that the points, you can easily calculate the electric field. We can also do the reverse, हम उल्टा भी कर सकते हैं, and by reverse I mean we can find out potential if electric field is given to us। हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो हम पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू वो भी समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से दैट वी आर गिवन विद इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स स्क्वायर वाई जेड, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है एक्स स्क्वायर वाई जेड, ठीक है। और अब हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल, फाइंड V from 0,0,0 to 1,1,1। I have taken the simplest example, सबसे आसान एग्जांपल ले रहा हूं मैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। सबसे आसान एग्जांपल ले रहा हूं मैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ आए। सॉल्यूशन, तो V इज माइनस E डॉट dr, E डॉट dr, तो V इज इक्वल्स टू माइनस EX dx प्लस EY
डी वाई प्लस ई जेड डी जेड। ये कैसे आया? ई की वैल्यू जब हम रखेंगे ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप, डी आर की रखेंगे डी एक्स डी वाई डी जेड, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो केवल आई आई वाले ही फैक्टर्स बचेंगे। तो देखिए यहां पर v इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई जेड डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड डी जेड। कितना आ जाएगा आपके पास? माइनस वाई जेड एक्स क्यूब बाय 3 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर बाय कितना? 2। लिमिट रख दीजिए -1/3 -1/2 -1/2, दिस इज -1/3 -1, V आ जाएगा -4/3 वोल्ट। इस तरीके से हम लोग पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्या? इफ V, या देखो जरा ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले मेरे पास जो है दो चार्ज है प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू, सेम चार्ज है, इनके बिल्कुल सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां पे कोई टेस्ट चार्ज रखेंगे क्यू नॉट, ये कितना है? x है, ये कितना है? इसको भी x मान लो, मैंने सेंटर पे कहा। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। तो अब अगर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा, दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में जब रिपेल करेंगे तो होगा क्या? नेट फोर्स विल बिकम 0। नेट फोर्स 0 तो E 0। अब E अगर 0 है तो माइनस dV बाई डी आर कितना? और जब dV भी 0 है, अगर किसी का रेट ऑफ चेंज डेरिवेटिव 0 आ रहा है, that means that quantity is constant। वो जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक डाइपोल के बीच में कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहां होगा? E becomes 0 at the center of the line joining two equal charges। दो इक्वल चार्ज को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से मेरे पास दो चार्जेस हैं। आई हैव टू चार्जेस, प्लस क्यू माइनस क्यू। वंस अगेन, जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट पे कैलकुलेट किया था, एक एक्सिस पे जिसको एक्सियल पॉइंट बोला था, एक सर पे इक्वेटर पे जिसको इक्वेटोरियल पॉइंट बोला था। यहां पे भी ऐसा ही करेंगे। सबसे पहले एक्सिस पे कोई पॉइंट ले लिया P, डाइपोल के मिड पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस है R, डाइपोल का वैसे डिस्टेंस है 2D। ठीक है, पोटेंशियल में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि पोटेंशियल में आप वेक्टर लगाओगे। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी वजह से पोटेंशियल उस पॉइंट पे होगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना? R प्लस D। उसकी वजह से पोटेंशियल उस पॉइंट पे कितना होगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस D। जब आप V नेट निकालोगे तो V प्लस प्लस V माइनस नेगेटिव है, आपको नेगेटिव साइन कंसीडर करना है इस बार। व्हाट यू हैव टू डू इज टू कंसीडर द नेगेटिव साइन। आपने नेगेटिव साइन को कंसीडर करना है। जब आप नेगेटिव साइन को कंसीडर करोगे, फाइनल पोटेंशियल आपके पास आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। दिस इज द पोटेंशियल एट द एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल ये रहता है।
आप एक्सप्रेशन को ध्यान में रखें, एक्सप्रेशन से ही आपको चीजें जो है याद रहेंगी। बेसिक एक्सप्रेशन आप याद रखिए, जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सप्रेशन यू विल बी एबल टू रिमेंबर द अदर थिंग्स ऑल्सो। बाकी की जो चीजें हैं वो भी आप याद रख पाएंगे। तो एक्सियल पॉइंट पे जो डाइपोल है, दोबारा से सुन लो, एक्सियल पॉइंट पे जो डाइपोल की वजह से पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, P अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड आर क्यूब था, ये आर स्क्वायर हो जाएगा। जी हाँ, चलिए जी। तो इक्विटोरियल पॉइंट पे कितना, ये रहा डाइपोल, ये रहा इक्विटोरियल पॉइंट, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ऐसे, दिस इज D, दैट इज D, ये कितना है Z, तो ये हो जाएगा अंडर रूट Z स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ये भी कितना हो जाएगा Z स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो आपके पास प्लस की वजह से पोटेंशियल Q अपॉन 4πε0 अंडर रूट Z स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, Z स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, माइनस की वजह से पोटेंशियल Q अपॉन 4πε0 Z स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। V नेट कितना आएगा, V नेट आ जाएगा V प्लस प्लस V माइनस, यानी कि 0। इक्विटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल 0 है। क्या ऐसा जरूरी है कि कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 ना हो? यस का उल्टा, कहीं पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो 0 बट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। दोनों केस पॉसिबल है, बिल्कुल जायज तरीके से पॉसिबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 यहां पर है, यहां पर पोटेंशियल थोड़ी ना 0 होगा, इसका भी पोटेंशियल उसका भी पोटेंशियल दोनों ऐड कर दो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां पे 0, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी ना 0 था यहां पर। तो अगर आप एक एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं किसके लिए, पोटेंशियल के लिए, तो P cos थीटा 4πε0 आर स्क्वायर। एक्सियल के लिए थीटा 0 तो P रह जाएगा, इक्विटोरियल के लिए थीटा 90 तो V 0 हो जाएगा। अगर हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक डाइपोल को वही इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो उस पर कुछ टॉर्क लगेगा। कितना टॉर्क लगता है, PE साइन थीटा। आपने क्या किया, इसको डिस्प्ले ऐसे था स्टेबल, आपने उसको ऐसे डिस्प्लेस कर दिया तो ऐसे जाएगा कि ऐसे घूम जाएगा, है ना, कि ऐसे से करता रहेगा। कितना वर्क डन करना पड़ा उस प्रोसेस में, वो है। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है PE cos ऑफ थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1। इनिशियल आप कितना ले रहे हैं, दैट डिपेंड्स। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इट इज माइनस P डॉट E, यानी कि माइनस PE cos थीटा। अगर साइन थीटा, अगर साइन 0 है तो भी टॉर्क 0 है, साइन 180 है तो भी टॉर्क 0 है। तो मतलब कि इक्विलिब्रियम तो दो केस में बन गया ना, एक जगह तो थीटा 0 है, एक जगह थीटा 180 है। अरे भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डाइपोल है, माइनस प्लस, तो अभी तो देखो ना एंगल है 90, अब तक तो ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू। अभी थीटा है 0, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डाइपोल है, प्लस क्यू माइनस क्यू। अभी थीटा है 180, 180 से अगर उसको छोड़ोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो उस तरफ ही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लस है माइनस है तो रिपेल करेगा। तो अब जो है लास्ट वाला पार्ट आ रहा है नीचे का, आ रहा है। अब ये यहां पर जो है इसको थोड़ा ध्यान से समझे आप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लस वाला पॉइंट है, ये माइनस वाला, डाइपोल का भी ये प्लस, तो ये दोनों आपस में रिपेल करेंगे। तो जब थीटा 180 है तो डाइपोल जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जब थीटा 0 है तो वो स्टेबल में है, मतलब कि अगर आप उसको डिस्प्लेस करते हो, इसको डिस्प्लेस करते हो तो घूमकर उस पे आ जाएगा, उसी पोजीशन में। इसको डिस्प्लेस करोगे तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी है किसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल की। नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर आप जो है लेट्स से वी वांट टू राइट द पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्ज,
तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको और बता देता हूं पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए कैसे लिखी जाती है। हाउ टू राइट डाउन पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ चार्ज। अगर एक चार्ज पहले से ही, अगर कोई चार्ज मौजूद नहीं है तब तो ठीक है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लेट्स से वी वांट टू असेंबल 4 चार्जेस, तो वर्क डन सबसे पहले कितना होगा? 0, क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं है वहां पे, आप आसानी से चार्ज चला जाएगा थोड़ी सी फोर्स के साथ। W2 वर्क 2 कितना होगा? एक चार्ज पहले से प्रेजेंट है तो दूसरा, पहले वाले का पोटेंशियल, दूसरा चार्ज, तीसरे चार्ज को ले जाने में कितना? अब जो 2 की वजह से वहां पोटेंशियल है, और चौथे वाले को लेकर के जाने में कितना? अब जो तीनों की वजह से वहां पोटेंशियल है। पोटेंशियल मतलब चार्ज तो रिपेल करेंगे ना, ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल कर रहा है, मुझे इसको इसके नजदीक लेकर के जाना है, लेकिन ये रिपेल करे तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी खर्च होगी, वो है ये। तो यहां पर आपके पास टोटल एनर्जी कितनी है? Q2 V1 प्लस Q3 V1 प्लस Q3 V2 प्लस Q4 V1 Q4 V2 Q4 V3। अब इतना सब कुछ नहीं हम बार बार कैलकुलेट करते, तो ये टोटल एनर्जी कितनी हो गई है? U12 U13 U32 U41 U42 U43 U43। अब यहां पर अगर 1 2 है तो 2 1 भी तो निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट तो सारे ही होंगे ना। U13 है तो U23 भी निकाल सकते हैं, U14 U32 है तो 2 3 भी निकलेगा, 4 1 है तो 1 4 भी निकलेगा, 4 2 है तो 2 4 भी निकलेगा, 4 3 है तो 3 4 भी निकलेगा। तो इसलिए हम पोटेंशियल को ऐसे लिखते हैं, हाफ सबमिशन QI QJ अपॉन RIJ। I comma j is from 1 to n. This is the way to write down the potential energy. इस तरीके से आप पोटेंशियल एनर्जी जो है वो लिखते हो, किसके लिए? सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए। सो दैट वाज द हाफ पार्ट ऑफ द सेकंड चैप्टर। इस चैप्टर में अब बचता है कैपेसिटेंस, दैट आई विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। I hope you like the video, and if you genuinely like it, please do share, subscribe, and if you want to give any suggestion, just give it in the comment box. So see you in the next video. This is Abhishek signing off. See you in the next class. Till then, keep studying, keep working hard, make yourself shine. ठीक है? It's life को ऐसे waste नहीं करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम नजदीक है। इट्स नॉट ओनली अबाउट बोर्ड्स, कुछ ना कुछ करते रहिए जिंदगी में, कुछ अच्छा, कुछ कंस्ट्रक्टिव, जो आपको, ना सिर्फ आपको, जो आपसे जुड़े हुए उनको भी मोटिवेट करे। So till then, take care. Jai Hind.